Hello children, I am your Babita ma'am coming with a new chapter from your class 6 science book that is sorting materials into groups. इसका माने क्या है, हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स को कैसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे. ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So you can see different type of material in your surrounding. Okay, they are different in their shape, their size, their color, and in the material from which the object are made also different from each other. So when you see in your surrounding, you can see a chair, a cycle, cooking utensil, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects which are different in shape, color, size, and the material they are made up of. I will give you some example that how you can sorting that materials in different groups. I will give you first a task to sorting the material according to the round shape. When you think about round shape, you can include in your mind a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round, मतलब जो पूरा राउंड नहीं है लेकिन नियरली राउंड है, तो हम लोग को माइंड में क्या आएगा? एप्पल, ऑरेंजेस एंड अर्थन पिक्चर. वो क्या है? घड़ा. घड़ा देखें ना, जिसमें पानी रखते हैं, वो भी राउंड शेप का है लेकिन पूरा राउंड नहीं है, नियरली राउंड. ओके, सो we can list these in the round shaped items. Okay, then if we wish to make a group of objects that are made up of plastic, then what will come to your mind? Buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. Okay, तो हम लोग क्या किए? पहले तो शेप के हिसाब से ग्रुप किए, कौन सा राउंड शेप है उसको ग्रुप किए, फिर प्लास्टिक से क्या क्या बना है उसको ग्रुप किए. इसी तरह हम लोग और भी चीज़ों को उनके मटेरियल्स के हिसाब से, शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से हम लोग उसको ग्रुप कर सकते हैं. ओके, all objects around us are made up of one or more material. These material may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. First, we will learn about the different objects made up of same material. Okay, अलग अलग चीज़ लेकिन एक ही मटेरियल से बना है. जैसे मटेरियल है वुड, मटेरियल है वुड, पर उसमें से क्या क्या बना है? चेयर, टेबल, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज द मटेरियल. सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वुड. देन another material is paper, and from paper books, notebooks, newspaper, toys, calendars, these are made. Then another material is leather, from which bags, shoes, accessories, जैसे कमर में जो लगाते हैं बेल्ट, ये सब लेदर से बनता है. देन अनदर मटेरियल इज प्लास्टिक. प्लास्टिक से क्या क्या बनता है? टॉयज़, ऑटेंसिल्स, फर्नीचर्स. देखे हो ना, आजकल घर में फर्नीचर भी प्लास्टिक का ही रहता है. देन कॉटन. कॉटन इज मटेरियल एंड कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ्स. हम जो वेयर करते हैं ना, कॉटन क्लॉथ्स, वो कॉटन से बनता है. और जो रॉ कॉटन होता है उसमें से पिलोज, बेड्स, ये सब भी बनता है. तो these are different objects made up of same material. Then we study about same object made up of different material. ये उल्टा हो गया. वो हो गया एक ही मटेरियल से अलग अलग चीज़ें बना है. और अभी पढ़ेंगे एक चीज़ अलग अलग मटेरियल से कैसे बनेगा. देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, प्लेट. प्लेट है ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, पर ये किससे बना है? देखो, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक. स्टील का भी प्लेट रहता है, ग्लास का भी रहता है, प्लास्टिक का भी रहता है. एनी अदर मीन्स पेपर प्लेट्स भी आप लोग देखे होंगे, देखे हैं ना, पत्ता से भी प्लेट बनता है, लीफ से भी प्लेट बनता है. तो ऐसे प्लेट एक ऑब्जेक्ट है लेकिन वो डिफरेंट मटेरियल से बना है. देन पेन.
पेन ऑब्जेक्ट है पर ये प्लास्टिक का भी होता है और मेटल का भी होता है, तो दीज आर सेम ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. ओके, there are 5 properties we will study about the materials. 5 properties. First, appearance. Second, hardness. Third, soluble or insoluble. 4, objects may float or sink in the water. And 5, transparency. So properties of materials are 5. First, appearance. Second, hardness. Third, soluble or insoluble. Fourth, objects may float or sink in the water. And fifth, transparency. First, we will study about the appearance. Appearance means what? वो दिखते कैसे हैं, उनका जैसे appearance इंसानों के लिए जब appearance बोलेंगे तो उनका चेहरा, उनका लुक, उनका बॉडी, मतलब वो कैसे दिखते हैं. उसी तरह मटेरियल्स दिखते कैसे हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको डिफरेंट ग्रुप में, कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium. So, क्या होता है, लकड़ी जो है वो लोहे से अलग होता है, लोहा एल्युमिनियम से अलग होता है, और जो एल्युमिनियम है वो कॉपर से अलग होता है. पर एल्युमिनियम, कॉपर और लोहे में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, क्योंकि ये सब है मेटल. वुड मेटल नहीं है. जब हम लोग वुड को काटेंगे तो शाइनी नहीं दिखेगा, पर अगर हम लोग आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम को काटेंगे तो जो कट पार्ट है वो शाइनी दिखेगा. आप लोग को अगर देखना है तो कभी जाके देखो जहाँ पे वो आयरन रॉड्स कटा होता है, वो जहाँ पे कटा होता है वहाँ पे शाइनी दिखता है. ऐसे तो उसके ऊपर जंग लगा होता है, वो पता नहीं चलता है शाइनी है बोल के, पर जहाँ पे कटा होता है वो शाइनी दिखता है, क्योंकि ये मेटल है. सो some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. So क्या होता है, वो जो एयर और मॉइस्चर से के वजह से जो मेटल होता है उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो हमको उसका शाइनी पार्ट दिखता नहीं है. जब हम लोग काटते हैं तो हम लोग उसका शाइन देख सकते हैं. एंड मटेरियल डेट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स एंड वी कैन सी देयर शाइन ऑल्सो बाई रबिंग देम विथ ए सैंड पेपर. ओके, सैंड पेपर से अगर रब भी करेंगे तो बिना काटे भी हम लोग उसका साइन पार्ट को देख सकेंगे, और लस्टर को रिमूव करके उसका साइन को देख सकेंगे. सो यूजुअली जो शाइनी होते हैं, जिसके ऊपर रस्ट लग जाता है, वो सब क्या होता है, मेटल्स होता है. ओके, देन वी विल गो टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज हार्डनेस. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some material while some cannot be scratched so easily. Material which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other material which are difficult to compress are called hard. सो जो मटेरियल को हम लोग इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उसमें इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, वो मटेरियल को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल बोलेंगे. और जिसके ऊपर हम इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, वो हार्ड मटेरियल है. सो मटेरियल्स which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. आप लोग कॉटन को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली उसको अलग कर सकते हैं, पर जो वुड है, आयरन है, ये सब क्या है, हार्ड है, वो इजीली कंप्रेस नहीं होता और इजीली टूटता भी नहीं है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस. देन द थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉल्युबल
और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मीन्स क्या है, जब वाटर लेके हम लोग उसमें कुछ मिलाएंगे, अगर वो मिक्स हो गया उसमें और गायब हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो मटेरियल जो है सॉल्युबल मटेरियल है। और अगर वो मिक्स नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनसॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक some water in 2 beakers or glass, then you can take some salt or sugar and take some sand or oil. Then you can easily notice when you put the salt or sugar in the water and stir it, then you can see that after some time it will dissolve and you can't see the salt or sugar. So this is the soluble material. But when you put some sand and you mix, you stir, then it can't be dissolved in the water, so it is insoluble. And again, some liquid are also soluble and insoluble, like when you squeeze a lemon in a glass of water, what it will mix in the water, so lemon juice is soluble. But when you put some drop of oil, it never mix, so it is insoluble. Then the fourth property is objects may float or sink in the water. Objects, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि वाटर के अंदर सिंक कर जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक सम स्टोन, some coin, or some rice, some dal, and you put them into a glass beaker of water, then you can see these objects can sink into the water. Okay, but if you put some dry leaves on the water, it will float. If you put some vegetable, it will float. Okay, some vegetable, some will sink and some will float. So like this you can test which material is float and which material is sink in the water. Like that, in liquid, when you put a drop of honey in the water, honey sinks. But when you put a drop of coconut water or the vegetable water, then it will float on the water. In this way, some objects may float and some sink. Then the last property is transparency. Transparency means what? स्वच्छता, मतलब पारदर्शिता. आप लोग एक ग्लास लोगे और ग्लास से जब देखोगे तो आर पार आपको दिख जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. पर एक वुड का प्लेट लेके अगर देखोगे तो आर पार नहीं दिखेगा, इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है. तो जिसके आर पार दिख जाता है वो है ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये अलग अलग होता है. कुछ चीज़ों में अच्छी तरह पूरा आर पार दिखता है, कुछ में थोड़ा थोड़ा दिखता है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं दिखता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड इन 3 group. One is transparent, second is opaque, and third is translucent. What is transparent? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. जिसके थ्रू चीज़ें दिख जाती हैं उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं. Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. For example, glass, water, एयर एंड सम प्लास्टिक्स. ये सब के अंदर से हम लोग पूरा आर पार उधर के चीज़ें भी देख सकते हैं, तो इसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. सेकंड, ओपेक. ओपेक क्या है? दोज मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक. जिसके थ्रू चीज़ें नहीं दिखते हैं उसको ओपेक मटेरियल बोल के बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल है वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स एट्सेट्रा. इसके थ्रू हम लोग चीज़ों को नहीं देख सकते, तो इसको ओपेक बोल के बोलते हैं. देन थर्ड है ट्रांसलूसेंट. The materials through which objects can be seen but not clearly
कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें से ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं पर क्लियरली नहीं दिखते हैं, आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑयली पेपर, वैक्स्ड पेपर, थिन प्लास्टिक शीट्स, वेजिटेबल ऑयल एट्सेट्रा। सो जो मटेरियल के थ्रू चीज़ें तो दिखते हैं पर क्लियरली नहीं दिखते, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जैसे आप लोग मान लो कुछ एक पेपर में ऑयल लगा लिए या कुछ ऑयली चीज़ रखे हो, अब उसको लेके लाइट के सामने देखोगे तो आपको कुछ नज़र आएगा पर क्लियरली नज़र नहीं आएगा, तो वो ट्रांसलूसेंट है। ओके, तो जिसके थ्रू पूरा दिखाई देता है वो ट्रांसपेरेंट है, जिसके थ्रू दिखाई नहीं देता है वो ओपेक है, और जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, क्लियरली नहीं दिखाई देता है, वो ट्रांसलूसेंट है। देन वी विल स्टडी अबाउट व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। हम लोग ये मटेरियल को ग्रुप में क्यों डिवाइड करेंगे, इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा। द फर्स्ट इज इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर एन कन्वीनियंस। हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको ग्रुप करते हैं। जैसे मान लो हमारे घर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे रसोई में कुछ चीज़ें रखा हुआ है, कुछ नमकीन है, कुछ स्वीट चीज़ें हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें रखा हुआ है। तो अगर हम ट्रांसपेरेंट डिब्बे में उसको रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा किस में है। ओके, तो हम लोग उसको ग्रुप करके जैसे एक जगह में नमकीन्स रख दिए, एक जगह में स्वीट चीज़ें रख दिए, ऐसे रख दिए। जैसे दुकान में है, ग्रोसरी शॉप में है, जो चॉकलेट्स वगैरह बेचते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो चॉकलेट्स होता है एक साइड लगा लिए, जो उनका ग्रोसरी आइटम है एक साइड लगा लिए, जो उनका स्टेशनरी आइटम्स है वो एक साइड लगा लिए। तो क्या किए, चॉकलेट्स को एक ग्रुप कर लिए, ग्रोसरी आइटम को एक ग्रुप कर लिए, और जो उनका स्टेशनरी चीज़ें हैं उसको ग्रुप कर लिए और अलग अलग जगह में लगा लिए। तो जब वो ढूंढेंगे कोई भी चीज़, हाँ ये जगह में ये है, ये जगह में ये है, ईजीली उसको पा सकेंगे, इसलिए हम लोग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। देन सेकेंड, देयर इज़ अनदर रीज़न दैट डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनिएंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज़। और क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंट ग्रुप में उनको रखते हैं तो उनका जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम लोग को इजीली पता चल जाता है, और वो प्रॉपर्टीज़ में क्या पैटर्न है वो भी पता चल जाता है। जैसे मान लो वो दुकान वाला भैया एक जगह में स्वीट आइटम लगा लिया, एक जगह में नमकीन आइटम लगा लिया, एक जगह में ग्रोसरी आइटम लगा लिया, स्टेशनरी आइटम लगा लिया और चॉकलेट्स लगा लिया। तो जब हम लोग देखेंगे वो तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग को इजीली पता चलेगा कि हाँ ये नमकीन है, ये मीठा है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये तो लिक्विड है। तो इस तरह उसके प्रॉपर्टीज़ और उनके पैटर्न के बारे में भी हम लोग को पता चलता है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं।